Okay, students, a very good morning. Let us start with a topic that we left yesterday. Yes, students. There is some kind of rainbow. Yes. Okay, students. Let us start. Yesterday, we did adaptations of organisms found in polar areas. Close this book. No book should be opened. You are not supposed to open the books in the class. You just have to note it down in your notes copy and open the books at your home. Got it? Why you are sitting at last? Is it visible? Okay. If not, you can sit forward. Okay. Yes, students. Yesterday we discussed polar bear and penguin. Before moving forward to the desert organisms adaptation, let us do one small topic, migration. You might have heard about this term in your junior classes. What is migration? Sometimes what happens is a very beautiful paragraph is given in your book. Blue color के block में दिया हुआ है. No need to open the book. Open it at your home only. Migration क्या है? Sometimes in a place there are some unfavorable conditions. कई बार बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है. Birds cannot survive. ठीक है? So to escape these climatic conditions, they fly towards a warmer place, to more favorable place. ठीक है? And after some time, they come back to their original place. That is known as migration. तो क्या हुई migration? आ जाओ. Come from this side. So, क्या कहा है मैंने? माइग्रेशन क्या है? It is, लिख सकते हो आप. If you want to write, you can write the definition. Otherwise, it is very much given in your book. What is migration? Migratory birds travel. Migratory birds travel to escape the extreme climatic conditions, right? To escape the extreme climatic conditions at home. बेटा book में दिया हुआ है. I will not dictate every word. I have told you to close the book. To escape the climatic conditions at home. Migrate क्यों करते हैं? उनकी जगह पे जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे हार्ड कंडीशंस हैं. हाँ जी, कंडीशंस एट होम. ठीक है? एंड come back to their original place after the onset of favorable conditions. After the onset of favorable conditions. And they came back to their home after the onset of favorable conditions. Onset मतलब जब वहां पे favorable conditions वापस आ जाती हैं, दोबारा से आ जाती हैं. Onset, right? क्लियर हो गया बच्चे? हाँ जी, ऑफ फेवरेबल कंडीशंस. प्लीज इस तरह मैं एक एक वर्ड डिक्टेट करती रहूंगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. हाँ जी, माइग्रेशन इज आकृति. आई एम टेलिंग अगेन, माइग्रेशन क्या है? सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल to escape the extreme climatic conditions at their home and they come back to their home on the onset of favorable conditions. Got it? So बच्चे, birds जो हैं they fly high. Birds बहुत ऊंचा fly करते हैं. क्यों? क्योंकि उस एरिया पे, उस रीजन पे the wind is helpful to them. जो हवा चलती है वो क्या है? उनको फ्लाई करवाने में हेल्पफुल है, राइट? एंड
कोल्ड कंडीशंस आर आल्सो देयर. अब क्वेश्चन आता है व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई हाई, है ना. व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई हाई? बिकॉज विंड इज हेल्पफुल. विंड इज हेल्पफुल टू देम. उनको विंड वहां पे हेल्प करती है. नंबर 2, कोल्ड कंडीशंस देयर, वहां पे जो थोड़ी बहुत सर्दी है, कोल्ड कंडीशंस देयर आर हेल्पफुल. कैसे हेल्पफुल है? ये जब फ्लाई करते हैं, जो विंग्स की फ्लाइट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उसको कूल डाउन करने में हेल्पफुल है कोल्ड कंडीशंस. कोल्ड कंडीशंस देयर आर हेल्पफुल टू disperse the heat generated जो हीट जनरेट होती है बाय देयर फ्लाइट मसल्स. जब वो फ्लाई करते हैं, उनकी जो फ्लाइट मसल्स के ऐसे फ्लाई करने से हीट जनरेट होती है, उसको डिस्पर्स करने में कूल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर हेल्पफुल. ठीक है, बाय देयर फ्लाइट मसल्स. गॉट इट? दिस इज द रीजन व्हाई दे फ्लाई हाई. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, हमारे इंडिया में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं फॉर माइग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन. साइबेरियन क्रेन आती है हमारे यहाँ भरतपुर में, राजस्थान में. ठीक है, तो बच्चे ये एक ही जगह पे कैसे आ जाते हैं हर साल? हाउ डू दे कम टू नो? इसके बेटा रीजंस आर स्टिल नॉट क्लियर. कुछ लोगों का ये कहना है कि इनके अंदर, अब क्वेश्चन एक और आता है, हाउ डू दे रिटर्न टू देयर ओन प्लेस अगेन एंड अगेन, एंड हाउ डू दे माइग्रेट टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर? उसके 3 रीजंस हैं. एक है दे हैव इनबिल्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन. उनके अंदर इनबिल्ट सेंस है, उनको पता है कहाँ जाना है. हाँ जी, वो एग्जाम्पल है बेटा. पर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो हर जगह, उनको हर बार, हर साल कैसे पता चलता है कि हमें यहीं पे आना है? कौन सी मैग्नेटिक फोर्स? हाँ, यस, इनका कहना है दे मे नो द लैंडमार्क्स. कुछ निशानियां रखी हुई हैं उन्होंने. ठीक है, एक है उनके अंदर इनबिल्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन है, उनको पता है कहाँ को ट्रेवल करना है. एक जो मिथ है वो कहता है कि दे यूज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू फाइंड डायरेक्शंस. ठीक है, एक नंबर 4 कहता है स्टार्स एंड सन्स दे गाइड देयर वे. ठीक है, वो कहते हैं कि दे मे बी गाइडेड बाय सन की जो डायरेक्शन है, सन का जो तरीका है, उससे उनको पता चल जाता है. मे बी गाइडेड बाय सन ड्यूरिंग डे एंड स्टार्स ड्यूरिंग नाइट. ये उन्होंने मिथ्स है, कंफर्म कुछ भी नहीं है इसमें से. ये 4 चीजें उन्होंने कही है, ये हो सकती हैं. राइट? Is this clear? This is very much given in your book in a paragraph. I have told you so many times to close the book. Still it is opened up. Right, Ji? हो गया क्लियर? नो क्लियर? क्या नहीं हुआ? Not only birds, some other organisms like mammals, fish, they also migrate to more favorable conditions.
उनके एरिया में जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस. व्हाट इट? फिश कैसे जाती है? जैसे बर्ड जाता है पानी के थ्रू. पानी पानी में जाना है उन्होंने, फ्रेश वाटर से सलाइन वाटर में, सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर में. ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलमोस्ट सारे ही प्रेजेंट हैं आज भी. सारे प्रेजेंट हैं आज बच्चे. हाँ, 12 बच्चे ऑनलाइन प्रेजेंट है, 13वीं में. ठीक है, चलिए, शैल वी स्टार्ट नाउ? शैल आई इरेज दिस? डेजर्ट स्टार्ट करते हैं. बेटा इरेज कर दूं? ओके ओके, लिखिए, फटाफट लिख लीजिए. मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ. बच्चे बस करो. डेजर्ट. You all know what is desert, what type of conditions are there? क्या है डेजर्ट में? Very hot, hot climatic conditions, scarcity of water, पानी की कमी. ठीक है, तो डेजर्ट में those animals और those organisms will survive जो गर्मी बर्दाश्त कर सके. नंबर 2, जो फूड के बिना रह सके. Right? The best example that we give is that of camel. Camel is known as the ship of desert. So what are the adaptations? What are the special features of camel that enable it to survive in the desert? ऐसे क्या खास फीचर्स हैं जिससे कैमल डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है? नंबर 1, हाँ जी बताइए अर्जुन. They have bump? No, it has a hump. Bump नहीं है, it is hump. जो bump होता है ना, that is गड्ढा. ठीक है, और जो hump होती है वो ऊपर को उभरी हुई एक चीज है, वो hump होती है. हाँ जी, वेरी गुड. फर्स्ट इज हम्प. मैंने आपको पेंगुइन्स में भी बताया, पोलर बियर्स में भी बताया. सिर्फ हमें बॉडी पार्ट्स के नाम नहीं लिखने लक्षित, हमें साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है. हम्प का क्या रोल है? इट स्टोर्स फैट. इट स्टोर्स फैट. सो whenever there is lack of food, this stored fat, it is used by the camel. Is this clear? This stored fat is used by the camel when there is scarcity of food. जब ये कभी यहाँ पे scarcity होती है food की, scarcity of food. So what I have told is it has a hump.
हाँ जी, am I audible now? Please lower your hands. Shady, छांव वाली places. D-Y, shady places, right? They come out at night to look for food. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. They come out at night to look for food. जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स रात में निकल के आते हैं, they are known as nocturnal animals. इसके अलावा एक और एडेप्टेशन है. Some animals have very large ears. इनके कान बड़े बड़े होते हैं. Yes, Krishna, any doubt? Any problem? एक्सक्यूज मी मैम, बेटा मैम आपकी मैम आवाज नहीं आ रही थी मैम. लॉन्ग आई लैशेस है मैम, दोबारा समझा दो. ओके बेटा. यस बेटा, एक मिनट. कैमल की लॉन्ग आईलैशेस टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम सैंडस्टॉर्म्स. देन सोल्स आर लार्ज दैट आर हेल्पफुल इन वॉकिंग ऑन सैंड. देन लॉन्ग लेग्स दैट आर हेल्पफुल to keep the body away from the heat of sand. Got it? Then let us move to nocturnal animals. These animals, they live in the shady places during the daytime, and at night they come out to look for food. Got it? इसकी एक और adaptation है. Some animals living in deserts, they have long ears. लिखा आपने, they have long ears. ठीक है, मैं बताती हूँ. These long ears, they have blood vessels near the surface. इनके कान के पास, लंबे लंबे कानों के पास blood vessels हैं. Some animals have long ears which have blood vessels near the surface. The air which blows across the ear, जो हवा कान के पास से बहती है, it cools the blood. It cools the blood. जी, blood vessels है ना यहाँ पे. It cools the blood. हमारे नहीं, उनके. कौन सी blood vessels? The air which blows near the ear cool the blood, which in turn cool the body. अगर ब्लड कूल हो गया तो सारी बॉडी कूल हो गई. इन टर्न कूल द बॉडी. गॉट इट? द एयर ब्लोज नियर द ईयर विच कूल्स द ब्लड, दैट इन टर्न कूल्स द बॉडी. इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल है कैंगरू रैट, kangaroo rat, fennec fox. fennec, ये है fennec के स्पेलिंग, fox, fennec fox. kangaroo rat, fennec fox. बेटा क्या डेफिनेशन? Some animals have long ears which have blood vessels near the surface. When air passes across the ear, it cools the blood, that in turn cools the body. Desert khatam. Now come to tropical rain forest. Very very important. आज adaptations नहीं होंगी, आज सिर्फ आपको tropical region और rain forest का मीनिंग समझाऊंगी. ठीक है जी? कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. अडेप्टेशंस है, छोटी छोटी हैं, थोड़े बहुत ऑर्गेनिजम्स की, पर आपको सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मीनिंग समझना जरूरी है. गॉट इट? जैसे हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस करी पोलर एरियाज की. वी हैड डन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ पोलर एरियाज, डेजर्ट. देन इन द सेम वे वी विल बी डूइंग द climatic conditions of tropical rain forest. Note down the topic. हाँ जी,
Will you stop? Girls, is there any problem? Stop talking. अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं? पहले ट्रॉपिकल का मतलब समझेंगे, फिर रेन फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं? आपने एसएसटी में करा होगा। हाँ जी, क्या होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स? हाँ जी बेटा बोलिए। वेरी गुड। सो ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से हैं? एरियाज लिखिए विच लाई क्लोज टू इक्वेटर, विच लाई क्लोज टू इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास है। ये अर्थ है ना, इसमें ये इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर। तो जो एरियाज इधर अर्थ के इक्वेटर के आसपास है, दे आर ट्रॉपिकल एरियाज। कहां से कहां तक है? ये क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। सो इट एक्सटेंड बिटवीन, कहां से कहां है? 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। ट्रॉपिकल रीजन हम किनको मानेंगे? 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। लिखिए, द एरियाज नियर द इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिकल एरियाज। दे एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। हाँ जी, कॉल्ड तो कहा ही नहीं हमने। ट्रॉपिकल एरियाज, हाँ जी, क्या 10 डिग्री? मुझे समझ नहीं आ रहा। दे एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। गॉट इट? नेक्स्ट, अब क्लाइमेट कैसा है? दे हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हाँ जी, आप अगला पॉइंट लिखिए। दे हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इवन इन द, ये मैं बता रही हूं आपको, समझा रही हूं, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतनी गर्मी होती है। एंड ड्यूरिंग समर्स द टेम्परेचर गोज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ, कूलर में देखो जो हमने करा था, यहाँ पे भी जनरली जब ठंड होती है तो 10, 12, 13, 9 इतना पहुंच जाता है टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर भी हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती। नहीं बेटे, हो जाता है। हाँ, मैक्सिमम 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ में वो कहता है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 15 रहता है, मतलब गर्मी होती है। एंड समर्स में इट में रीच अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है। $15 होगा बेटा, राइट? एक लाइन ना, उसके पीछे आपने कितनी बातें कर दी है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। आपने इक्वेटर का पढ़ा होगा एसएसटी में, दिन और रात बराबर होते हैं। मींस इट हैज दीज एरियाज रिसीव सनलाइट फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स। 12 घंटे इनकी सनलाइट रहती है। दे हैव इक्वल लेंथ डेज एंड नाइट्स, डेज एंड नाइट्स। ठीक है, हाँ जी, हाँ 12 बजे के पहले थोड़ी, अगर 5 बजे सुबह सूरज चढ़ जाता है तो मतलब 5 बजे तक सूरज पूरा रहता है, जैसे हमारे गर्मियों में होता है, वो थ्रू आउट द ईयर होता है। गॉट इट?
हाँ जी, नेक्स्ट ट्रॉपिकल कंडीशंस क्लियर होगी। अब रेन फॉरेस्ट क्या है? दिस एरिया रिसीव्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अच्छी खासी रेनफॉल होती है। हैव यू रिटन? दीज एरियाज रिसीव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। Good amount of rainfall. The forests here are dense. यहाँ पे अच्छे खासे घने फॉरेस्ट हैं and are known as tropical rain forests. भाई मुझे नहीं पता कौन सी रेनफॉल की बात कर रहे हो, थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंड भी करो बेटा। हाँ, फॉरेस्ट here are dense, घने फॉरेस्ट हैं एंड आर नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, दिखाइए मुझे इधर लाके। एंड आर नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट? आज वाला दिखाइए मुझे। कॉपी भर गई है, नहीं लानी। Then these tropical rain forests are found in, कहां पे पाए जाते हैं लिखिए। वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। बेल हो गई है वैसे, कल करेंगे स्टार्ट। आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। इंडिया में कहा मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स पे और असम में। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। गॉट इट? ओके जी, वी विल मीट टुमारो।